Hi, good afternoon. My name is Pratik Gupta and welcome back to Unacademy. So in today's lecture, we are going to start and discuss about a topic called that why does India experiences persistent and high food inflation? Okay. So this topic is very well known to you people because if you see for the last 1 year, the food inflation in case of our country has been rising a lot. जैसे कि आपको याद होगा कि few days back, in fact in the month of September or in the first week of August, we did one video on YouTube, and there I told you why there is a difference between the inflation rate of the WPI and CPI. Okay, so under that particular video I told you people that the inflation rate in case of WPI for the last 1 year is almost in double digit, that is it is more than 10%. And when it comes to the CPI, the inflation rate is around out of control, because you know this thing, as per the monetary policy framework agreement between the government of India and RBI, the inflation rate in case of our country has to be 4% and plus minus 2%. That is a comfortable range for the CPI combined. Okay, but the point is what, if you see the inflation rate is completely crossing this range of 2 to 6%, that means inflation rate is currently 6% more. Okay, अब देखिए कई बार आपने सुना होगा कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जब भी बात आती है उनसे इन्फ्लेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, then every time they have been giving this excuse that though we have inflation, but the point is what, India is doing comparatively better in comparison to other countries. So in today's lecture I'll also tell you that how India is performing in terms of inflation in comparison to certain developed country. ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू टू थिंग, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट दैट व्हाट आर द मेन एंड conventional causes of inflation in case of any country, and what kind of new things have been added in the recent time that leads to even more amount of inflation in the country, और क्यों उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो पा रहा है, तो हम इनके बारे में बात करेंगे. ओके, सो लेक्चर विल बी अराउंड 20-30 minutes maximum, so it is not going to consume a lot of time of your people, but yes, it is going to be very important, and moreover it is very much required to understand that what is all currently going on. So to have more information about my videos and the other, so you can simply follow my Telegram channel. So there you can simply go and join, and then after that you will be able to get to know about all the latest video and the other. And currently a comprehensive course is going on the Unacademy app. Under that I'm covering the complete economics part in around 40 classes. So it's just that we have completed only 5 classes over there. So if you people wants to join, then you can simply join, and you can use my code called PGUPSC for the purpose of getting around 10% off. And sometime when the offers have been going on, you can simply go for 20% off also. Okay, so let's begin. So 13th October is the date when the batches have been started, and you people can opt for 0% EMI if you're facing any kind of financial difficulty. So in the recent days, Unacademy has also started for EPFO examination classes. That is, you know this thing, Assistant Provident Fund Commissioner. So that is what a job you can aspire through from this particular examination. So if you want to join, you can use my code PGUPSC, and then you will be able to get 20% off currently going on. So you just need to pay 2400 rupees, and 20% off you will get, and for 6 months subscription you need to pay 1840, and you will get around 460 rupees off. So good amount of off is going on, so you can opt for it. Then complete battle is going on, where you get a chance to win a laptop and total price worth of 2 lakh rupees. So we are also launching an app on the Android very soon. Okay, the Unacademy Ultra Combat is going on, 50 questions, 60 minutes. So if you win the contest, then certainly you're going to get a lot of good prizes like laptop and the other. Now let's come to our topic. See, that is what the comparison we have regarding inflation rate of India with respect to other certain developed country. यहाँ पे आप देखेंगे, so 2021 में जो inflation rate थी हमारी on average, that is about the consumer price index, तो वो अराउंड 6% के आसपास आपको देखने को मिलेगी, which now in 2022 as you can see it is around 7% something. That is what the range of inflation we have in 21 and 22. If you compare this in USA, then again if you see the inflation rate in USA was less than 6% last year, but this year if we talk about, it is more than 8%. So 5% here and around 8% plus here you have.
If we talk about the European Union zone, their inflation was under control around 2%, but that is currently around again 8% plus. If we talk about UK again, तो यूके की बात करेंगे तो 2 से 3% के आसपास थी, विच इज नाउ अराउंड 9% प्लस. ओके, जापान की बात करेंगे सो इट वाज नेगेटिव एज यू कैन सी, बट अगेन देर आल्सो एक्सपीरियंसिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ 2 to 3% करंटली. ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे 4% थी, विच इज नाउ अराउंड 6% प्लस. ओके, सो पॉइंट ये है कि हर कंट्री में इन्फ्लेशन है, एंड यू नो दिस थिंग, द करंट रीजन फॉर द इन्फ्लेशन इज व्हाट इज द कोविड-19 पेंडेमिक. ठीक है, तो आप मान के चलिए जब तक कोविड-19 पेंडेमिक कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाता है और चीजें बैक टू नॉर्मल नहीं आती हैं, बिकॉज आई वुड स्टिल से थिंग्स आर स्टिल नॉट नॉर्मल. अभी कुछ दिन पहले की बात है, WHO ने एक और एडवाइजरी जारी किया था, अंडर दैट दे बेसिकली सेड दिस पॉइंट that now in the winters there is a more chance that the COVID-19 pandemic cases will again start increasing in the Asian continent. The reason is what? Because in winter there is a more chance that the virus will transmit more. और आप जानते हैं अभी चाइना की फिर से खबर आई थी कि चाइना के एक पर्टिकुलर टाउन के अंदर they been experiencing so many COVID cases that leads to almost a complete lockdown over there. तो कहने का मतलब क्या है, जब तक चीजें नॉर्मल नहीं होंगी तब तक इन्फ्लेशन मान के चलिए आपको झेलनी ही पड़ेगी. ओके, द ओनली पॉइंट इज हाउ मेनी ईयर्स वी आर गोइंग टू टेक टू सिंपली टेक केयर ऑफ दिस कोविड-19, एंड आई एम टेलिंग यू नोबडी कैन टेल यू. तो अभी ये पेंडेमिक स्टिल इट इज गोइंग ऑन, सो इट इज नॉट इन द एंड स्टेज. लॉट ऑफ पीपल आर बीइंग सेइंग इट इज एंडेमिक नाउ, बट दैट इज स्टिल यू कैन से इन अ गुड अमाउंट ऑफ केसेस आर बीइंग कमिंग इन आवर कंट्री. तो कहने का मतलब क्या है, जब तक ये चीज कंट्रोल में नहीं आएगी तब तक मान के चलिए इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं रहने वाली है. क्योंकि पॉइंट क्या है, द रीजन बिहाइंड दिस दैट द सप्लाई साइड हैज बीन मेजरली इंपैक्टेड. चाहे आप मान के चलिए, अगर आप बात करेंगे कार्स की, वो भी महंगी हो रही हैं. अगर आप बात करेंगे फूड की, वो भी महंगा हो रहा है. एंड मोर ओवर, आग में घी डालने वाला काम किसने किया है? इट इज बेसिकली डन बाय द रशियन यूक्रेन वॉर हियर. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो पॉइंट इज व्हाट, इन्फ्लेशन देखिए जब हम बात करते हैं, so mainly it is being coming from two side of factors. First of all, it is known as a demand side factor, and the second is called as a supply side factor. ठीक है, जैसे आप मान के चलिए डिमांड साइड फैक्टर सिंपली आप कैसे डिफाइन करेंगे? दैट पीपल आर आस्किंग फूड टू ईट. ओके, दैट पीपल आर बीइंग आस्किंग फूड टू ईट, बट यू डोंट हैव गुड अमाउंट ऑफ सप्लाई अवेलेबल ओवर देयर. ठीक है, अब जानते हैं अगर नॉर्मल सी बात है कि अगर पैसे वैसा है, जैसे मान लीजिए करेंसी कोई सिस्टम नहीं है, तो उसमें क्या होगा, जो सबसे दबंग होगा, जो सबसे लड़ाकू होगा, उसको खाना मिल जाएगा, बिकॉज ही विल बी एबल टू स्नैच ऑल द फूड. अब सिस्टम क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट हैविंग सच काइंड ऑफ अ थिंग. तो अब पॉइंट क्या है, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, ही विल ऑफर मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ मनी, एंड देन द पर्सन विल बी एबल टू गेट इट. सो इट्स वेरी सिंपल. व्हेन लॉट ऑफ मनी इज चेजिंग few goods, that will lead to what? Increase in prices. Getting what I'm saying? The second is what? You have a supply side factors. Supply side की बात क्या है? That we need to provide goods and services to people. But the point is what? We have lesser amount of goods and services. क्यों? That could be any kind of man-made factor, or you can say it is mainly because of some sort of God actions. जैसे मान लीजिए बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो सप्लाई कम हो जाएगी. दैट मीन्स पीपल आर डिमांडिंग फूड, बट द फूड इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट टू ईट, बिकॉज दिस काइंड ऑफ इश्यूज आर बीइंग गोइंग ऑन. सामान आपने भेजा एक जगह से दूसरी जगह, एंड बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ द रोड कनेक्टिविटी एंड मोर ओवर द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, सामान बीच में ही खराब हो गया, सड़ गया, गल गया. खाने पीने की चीज आप जानते हैं खराब हो जाती हैं. सो इन दैट केस व्हेन यू बीइंग फेसिंग सच काइंड ऑफ इशू, इट मे ऑल्सो लीड टू इन्फ्लेशन. तो अब कन्वेंशनल की बात करते हैं तो डिमांड है, सप्लाई है. अब सप्लाई में देखिए एक और पर्टिकुलर फैक्टर है जिसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इंडिया के अंदर. वो क्या है? दैट वी आर आल्सो हैविंग समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेशन दैट वी आर इंपोर्टिंग इन आवर कंट्री. अब जैसे आप देखिए, इट्स वेरी सिंपल एंड इट इज नोन टू एवरीवन कि कोई भी चीज है वो किसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट से आएगी, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो एरोप्लेन है, चाहे वो रोड है, कुछ भी है, और उसके लिए आपको चाहिए फ्यूल. फ्यूल आपको मिलेगा किससे? क्रूड ऑयल से. और क्रूड ऑयल में आप जानते हैं वी आर बीइंग टोटली डिपेंडेंट. अराउंड 85% ऑफ द क्रूड ऑयल कंजम्पशन इन केस ऑफ आवर कंट्री इज बेसिकली बीइंग सेटिस्फाइड विद द इंपोर्टेड क्रूड ऑयल.
तो उस केस में अगर मान के चलिए क्रूड ऑयल अगर हमारे पास नहीं है और हम इंपोर्ट कर रहे हैं और क्रूड ऑयल के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं, देन ऑब्वियसली वी हैव टू पे मोर फॉर इट एंड देन वी आर बीइंग इंपोर्टिंग इन्फ्लेशन इन केस ऑफ आवर कंट्री। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो मान के चलिए जब ऐसा होगा तो इन्फ्लेशन आपकी बढ़ेगी। सो दीज आर द टू कन्वेंशनल फैक्टर व्हेन इट कम्स टू द इन्फ्लेशन। अब देखिए रीसेंट टाइम में ऐसा क्या हो रहा है जिससे इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। उन फैक्टर से आने से पहले जो मैंने आपको कन्वेंशनल की बात करी उसमें देखिए हमारे इंडिया की अगर बात करेंगे तो डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है बिकॉज पॉपुलेशन इज राइजिंग एवरी टाइम। सो एज यू नो इन द लास्ट 30 years the inflation the population in case of our country has been increased by 1.6% on an annual basis। हर साल 1.6% के आसपास बढ़ गई। तो आप कह सकते हैं अगर पॉपुलेशन 100 करोड़ है तो आप उसमें 1.5 करोड़ जोड़ रहे हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो इट्स अ ह्यूज नंबर। तो कहने का मतलब क्या है, हर साल एक ऑस्ट्रेलिया को आप जोड़ते जा रहे हैं। सो व्हेन यू बीइंग एडिंग लॉट ऑफ पॉपुलेशन सो दे विल डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन। मनी सप्लाई आप जानते हैं हमेशा इकोनॉमी में बढ़ती रहती है। गवर्नमेंट इतना बोरो करती है मार्केट से दैट लीड्स टू लॉट ऑफ मनी सप्लाई इंक्रीज इन द कंट्री। Black money is something which is very normal in case of our country because of presence of huge amount of informal sector। अब black money से demand कैसे बढ़ेगी? So imagine if you are being earning 100 rupees and you need to pay 30% tax out of it और आपने टैक्स नहीं पे किया। So if you pay tax then you can demand goods worth of 70 but now you can demand goods worth of how much? 100। So it will lead to more demand, inflation will be there। गवर्नमेंट के खर्चे आप जानते हैं, गवर्नमेंट का बजट का साइज हर साल बढ़ता जा रहा है और आप जानते हैं गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो मेनली रेवेन्यू होती हैं। दैट इज नॉट लीडिंग टू एनी काइंड ऑफ असेट क्रिएशन इन द कंट्री, दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू इन्फ्लेशन इन केस ऑफ आवर कंट्री। दूसरी बात अगर सप्लाई की बात करेंगे तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हमारे देश में हमेशा बनी रहती हैं। लॉजिस्टिक्स इश्यूज मीन सप्लाई चेन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, सामान बनता है खराब हो जाता है, सड़ जाता है। आप मान के चलिए 30 से 35% जो हमारे यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बनती हैं वो हमेशा बर्बाद हो जाती है। वाई? बिकॉज वी हैव अ पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज इन केस ऑफ आवर कंट्री, दैट इज अ प्रॉब्लम। वेस्टेज आप जानते हैं इतने लंबे, आपने कभी देखा होगा वेन एवर यू बीइंग एंटरिंग एनी स्टेट बॉर्डर you must have seen there's a huge or there is a long queue of trucks over there who are being waiting for their turn to simply enter the other state। Why? Because the kind of corruption we have, the kind of transit system we have at the state border that consume lot of time। और आप जानते हैं perishables जो goods होते हैं they are basically got rotten very soon। तो बहुत नुकसान हो जाता है और नुकसान होने से क्या किसको प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम इज बेसिकली टू अस। होर्डिंग आप जानते हैं इनफॉर्मल सेक्टर होने से जमाखोरी इतनी होती है देश के अंदर। जैसे आपने देखा राइस की अगर उपज कम हुई तो पीपल स्टार्ट होर्डिंग राइस, दैट लीड्स टू इवन मोर अमाउंट ऑफ प्राइस। और जैसे ही प्राइस बढ़ जाएंगे उनको ज़्यादा दाम पे बेचना स्टार्ट कर देते हैं। सो दीज आर बेसिकली दोज फैक्टर्स विच आर बेसिकली देयर इन केस ऑफ आवर कंट्री ऑल द टाइम। अगर आप बात करेंगे अब नई चीज़ों की तो ये चार ऐसे फैक्टर आप मान के चलिए जो करंट टाइम में इन्फ्लेशन को परसिस्टेंट एंड हाई बना रहे हैं। पहला क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशन और ग्लोबल वार्मिंग। सर इतना बड़ा फैक्टर है जिसको लोग अभी इतने सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बट यू नो दिस थिंग, द टेम्परेचर एट ए ग्लोबल लेवल इज राइजिंग ऑल द टाइम, एवरी ईयर इट इज राइजिंग। यू मस्ट हैव सीन इन केस ऑफ आवर कंट्री अनटाइमली रेन, कभी भी रेन शुरू हो जाती है। ओके, सो दैट लीड्स टू व्हाट? लॉट ऑफ डैमेज टू दी क्रॉप्स। इतना बर्बाद होती है, इतनी अभी आपने देखा होगा कि अभी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ओनली a lot of rain happen in the North India that leads to huge amount of damage to the various crops that we have been basically providing in the season। बहुत प्रॉब्लम हुई। पॉइंट क्या है कि अगर इसी तरह चीजें चलती रहेंगी तो मान के चलिए द थिंग्स आर गोइंग टू बी इवन मोर वर्स। सो पहला फैक्टर जो इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहा है वो ये है कि क्लाइमेट कंडीशंस जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, दैट इज लीडिंग टू लॉट ऑफ इश्यूज इन दी कंट्रीज एंड मोर ओवर एट अ ग्लोबल लेवल। ठीक है, दूसरी बात है रशियन यूक्रेन का वॉर। अब जैसे आप जानते हैं हमारे इंडिया में अगर आप बात करेंगे फर्टिलाइजर इज समथिंग दैट वी आर इंपोर्टिंग अ लॉट फ्रॉम कंट्री कॉल्ड यूक्रेन। अब वॉर होने की वजह से दैट इज नॉट कमिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस द प्राइसेस आर राइजिंग। एंड यू नो दिस थिंग, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइजर एट ए ग्लोबल लेवल। और फर्टिलाइजर यूज कहाँ होते हैं? हमारे एग्रीकल्चर के अंदर। अगर उसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो जब इनपुट के प्राइस बढ़ेंगे तो सर आउटपुट के तो प्राइस ऑटोमेटिकली मार्केट में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सेकेंडली, एट ए ग्लोबल लेवल इफ यू टॉक अबाउट द
prices of edible oil is rising a lot. रशिया और यूक्रेन दोनों ही अच्छे अमाउंट में एडिबल ऑयल बनाते हैं और मान के चलिए बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर देयर इज अ लेसर सप्लाई ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स एट अ ग्लोबल लेवल. और जब उनके प्राइस ग्लोबल लेवल में बढ़ेंगे और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड द अदर थिंग्स, सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट इवन मोर प्रॉब्लम. सो अगेन यू कैन से वी आर इंपोर्टिंग इन्फ्लेशन इन केस ऑफ आवर कंट्री. प्लस अभी मैंने क्रूड ऑयल का तो बताया ही दैट रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल एट अ ग्लोबल लेवल और वॉर की वजह से भी प्रॉब्लम है. Though we are also importing certain amount of things, but the point is what, as the prices in the international market is rising, so that is also impacting us. तीसरी प्रॉब्लम है डिक्लाइनिंग रूपी विद रिस्पेक्ट टू यूएसडी. अब देखिए, जब हमारी रुपये की वैल्यू कम होती है, सो थियोरेटिकली व्हेन वी बीन रीडिंग, इट इज बेसिकली मोर बेनिफिशियल फॉर व्हाट, फॉर द एक्सपोर्टर. Though it is not happening currently, but I'm just telling you. And that is going to create a problem for the importer because imports are getting expensive. अब सोचिए, अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, then you need to pay more and more amount of money for the same import that you were doing at a comparatively lower rate last year. लास्ट डॉलर का रेट था 74, अब आ गया 82. यानी कि पिछले साल अगर आपने $100 का सामान इंपोर्ट किया है, देन यू आर पेइंग 7400 रुपीज फॉर इट, बट नाउ टुडे यू बीइंग पेइंग हाउ मच, 8200 rupees for it. So almost 800 rupees extra you're being paying for it. So that leads to what? More cost for the imports. और आप जानते हैं हमारे इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो अगर आप फूड्स की बात करें, एप्पल की, एंड दी अदर, लाइक द वेरियस ड्राई फ्रूट्स एंड दी अदर, वी आर इंपोर्टिंग. अगर आप बात करेंगे एडिबल ऑयल की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारे यहाँ पे खाना बनाने में, आप मान के चलिए, दैट इज ऑल्सो बेसिकली वी नीड टू पे मोर फॉर इट. फर्टिलाइजर्स की जैसे मैंने आपको बात बताई, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर अस. फिर आप बात करेंगे अगर आप व्हेन यू टॉक अबाउट द पेट्रोलियम प्रोडक्ट दैट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, व्हेन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज गोइंग अप, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर द इन्फ्लेशन इन द कंट्री. फिर यहाँ पे आप देखेंगे जो क्लाइमेटिक फैक्टर है, दैट इज ऑल्सो बीइंग इम्पैक्टिंग द अदर कंट्रीज सप्लाई. जब ग्लोबल लेवल पे सप्लाई कम होगी तो हमें तो इन्फ्लेशन झेलनी ही पड़ेगी. ठीक है. And the fourth factor is what? That out of panic also inflation is also rising in case of our country. The reason is what? Consumer confidence is going down since 2016-17 onwards. Because what happened? Consumer confidence is all about that how well the government is working. Okay? अब देखिए यहाँ पे सर्वेज होते हैं जिसमें पूछा जाता है कि आप कैसे गवर्नमेंट के डिसीजंस को आंकते हैं. ओके, हाउ बेसिकली प्लेस द गवर्नमेंट डिसीजन. और आप जानते हैं डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और उसके बाद अलग अलग चीज़ जिस तरह से गवर्नमेंट के एक्शंस हुए हैं, जिसके वजह से आप मान के चलिए कहीं ना कहीं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी इम्पैक्ट हुआ है. सो आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल वेयर इट वाज गिवन एज द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज गोइंग डाउन इन केस ऑफ आवर कंट्री, दैट इज ऑल्सो बीइंग अ पॉइंट फॉर द इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ठीक है. तो मान के चलिए जब तक इन फैक्टर्स को आप टेक केयर नहीं करेंगे, एंड यू नो दिस थिंग दैट इज बीइंग वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टेक केयर. दैट इज समथिंग कैन नॉट बी कंट्रोल्ड ओवरनाइट. दैट इज समथिंग कैन बी कंट्रोल्ड, बट द पॉइंट इज व्हाट, नो साइन ऑफ कंट्रोलिंग दीज थिंग्स एट अ ग्लोबल लेवल. रशिया मान के चलिए नहीं रुकने वाला है. देन आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट डिक्लाइनिंग रूपी, कंटिन्यूअसली फॉल है. लास्ट 2 वीक की बात करें, 80 से 82 प्लस पे रूपी डिक्लाइन हो गया है. Okay, and then consumer confidence, again it has been going down because a lot of people got to believe that whatever way the government is supposed to handle the pandemic issue, the government is not able to handle it properly. So that is also leading to some sort of problem. So when the confidence is impacted, investment in the country is also being kind of impacted. Getting what I'm trying to say? तो मान के चलिए जब तक इन चीजों का समाधान नहीं निकलेगा तब तक इन्फ्लेशन चलती रहेगी. अब ये कोविड-19 पेंडेमिक 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में नॉर्मल हो, वी रियली डोंट नो. But yes, lot of economists are saying at a global level that it is going to take at least 10 years time to get everything totally normal and the economies to come back on track. But 10 साल में हो सकता है कोई नया वायरस आ जाए, कोई और प्रॉब्लम आ जाए. So the things are not really easy in the upcoming time. So point is what? It not just you can say the Indian economy need to be bothered about it. It is the entire world who is supposed to bother about this problem, and they should work together. Otherwise, the problems will be even more higher. और आप जानते हैं इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है गरीब आदमी को, or you can say to the lower middle class people. Those people who are coming under the higher middle class, or you can say the high income people, they're hardly bothered about the inflation because they have a lot of money and they're not bothered about it. So I really hope the things will be fine and the things will be taken care of. ठीक है.
चलिए आगे बात करते हैं. So you know this thing, Unacademy Civil Service Championship is back. So you people can simply go for this on 13th of November, and you will be able to get a lot of prizes worth of 40 crore rupees, and you will get a chance to meet an IAS officer. Then the UPSC CSC test series steer your preparation in the right direction. So you can simply go for the mains test series and the other, and the optional test series also you can simply go. Okay, and you will get a detailed evaluation. Then the optional carnival, so you can join the optional if you want, and then after that you have a chance to get the UPSC notes for 10,000 rupees around, so you can go for it. And then after that, the last mile UPSC CSC free interview guidance program 2022. So as you know, the mains result is going to be announced anytime, so go and take care of it. And then after that, thank you very much, take care, and bye bye.